And we told us how to take out central angle. Yes, beta. We have discussed how to take out central angle and how to draw pie chart. Now we are coming on that if the percentage are given, suppose in your class, if I'm talking about, there are total 60 students in your class. Okay, there are total 60 students in your class, and it is given in the question that suppose in your class the students different sports they like. Okay, different sports they like. So what percentage of the student are liking, suppose football, then cricket, then tennis, then suppose I have taken tennis, then suppose it is cricket or volleyball, And badminton. and the last one is badminton. Okay, so these are the sports which I have asked from your class only, that which sports do you like, and after that I have written in the form of percentage that what kind of percentage or what form of percentage is given in the form. ठीक है, तो यहाँ पर सपोज फुटबॉल जो है वो आपके यहाँ क्लास में केवल 15% बच्चों को पसंद है. ठीक है, 15% बच्चों को. देन वॉलीबॉल भी जो है वो 15% बच्चों को पसंद है. देन बैडमिंटन जो है वो 20% बच्चों को पसंद है. ठीक है, बैडमिंटन जो है वो 20% बच्चों को पसंद है. नाउ यू शुड नो दिस, cricket is just favorite of many students, so this is 30%, and the last one, that is tennis, is chosen by 20% of students. So now you may see here 15 15 30 30 and ये 20 हो जाएगा 50, then 50 and 20 मिलाकर के हो गया 70, 70 and 30 मिलाकर के हो गया 100. ठीक है, now suppose the percentage are given, so in that case how to draw the pie chart that I have to tell you today. ठीक है, आपको याद होगा इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने कल किया था बेटा, उस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था जब वैल्यू दी जाती थी. तो यहाँ पर क्या है, वैल्यू नहीं दी हुई है, हमें दिया हुआ है केवल परसेंटेज. एंड रिमेम्बर, आपने प्रीवियस क्लासेस में ये चीज पढ़ी है कि जब हमें परसेंटेज दिया हो तो हम फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं. ठीक है, बिकॉज यू आर नोइंग, हम जब भी बात करते हैं इनकी, तो हम क्या निकलेंगे यहाँ पर, यू कैन टेक इट आउट द फ्रैक्शनल पार्ट फ्रॉम इट. हाउ टू टेक इट आउट फ्रैक्शनल पार्ट, आई एम टेलिंग यू. 15% का मतलब होता है 15/100. डू यू एग्री विद इट? ठीक है, yes or no, tell me, do you agree with it? 15% means 15/100, 30% means 30/100, 20% means 20/100, then 15% means 15/100, the same way. So these are the form of percentage. Now these percentage you can convert easily in the form of simple 15%. It can be written 5 3s are 15, 5 2s are 10. Excuse me, ma'am. 0. So this will become 3/20. Swara, just a minute, beta. It will give you 3/20. Now you will see the board. You have got the different fraction from it. 3/20. Now this is cricket, that is 30/100. So जब आप solve करोगे, it will give you only 3/10. This is the fraction. Then 20/10, when you will cancel it, it will give you 1/5 when you will solve it. Same thing, 15%, 3/20. 20%, it will give you 1/5. Now all the percentage are now become the fractions. Okay, all the percentage which we have converted just now they have converted into the form of fractions. And now if you are remembering, the students who have attended the class of yesterday, for finding out the central angle, what we were doing it, if you remember, we just need to multiply by 360. Why we multiply by 360? If you remember, we were doing it by 360. Reason behind, because 360 degree is the angle for total circle. Complete angle is 360 degree. So we have to take it out particular central angle for each segment. Okay. The student who have attended yesterday, please tell me that are you making sense of it? Why we are multiplying by 3? We were
taking out first the fractions, fraction निकालने के बाद we will multiply by 360. ठीक है, now we will solve it. ये से ये cancel हो जाएगा, 2 1s are 2 and ये हो जाएगा आपके पास 18 and 18 3s होता है 54 डिग्री. मिल गया हमको हमारा एंगल. यस नहीं यस, उसके बाद हम सारे के सारे एंगल जो हैं वो निकाल लेंगे एक एक करके. तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 108. ओके, सेम प्रोसेस यहाँ पर आएगा 360. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 7 35, 5 2 10, 72 डिग्री. ठीक है, 72 डिग्री, ये वाला 108 आएगा बिकॉज हमने इसको पहले भी निकाल चुका है, एंड 1/5 वाला 72 डिग्री आएगा. It means now we have 320. already. Man, 320 was 54. Man, 320 was 54. Sorry, it was 54. 3/20 was 54 degree. Now we have got all the kinds of angle which we needed. ठीक है, इसके बाद आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कैसे पाई चार्ट ड्रॉ किया जाता है. पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले we will take the help of one circle and it should be drawn with the help of 5 centimeter radius, या उससे ज्यादा ले सकते हो बिकॉज ताकि आपका जो डायग्राम है वो कंप्लीटली बड़ा दिखे और आप जो इंफॉर्मेशन है वो उसको अच्छे तरीके से उसमें रिप्रेजेंट कर पाओ. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब ये सारा एंगल हमको ऑलरेडी मिल चुका है. सो आई एम गोइंग टू रब दिस वन. आई एम जस्ट टेलिंग यू नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रोसीजर. We'll draw a circle with the help of only compass. I told you you cannot use any bangle or something because you need to find it out the center of it. तो जब आप कंपास से ड्रॉ करते हो बेटा, केवल तभी आपको कंपास से सेंटर मिल जाता है बिकॉज यू आर टेकिंग ऑलवेज अ पर्टिकुलर सेंटर फॉर ड्रॉइंग द पाई चार्ट. तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप सबसे पहले ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ करने के बाद सबसे फर्स्ट यू विल टेक वन रेडियस जो कि आपने शुरुआत में लेकर के सर्कल को ड्रॉ किया था, एंड एक एक करके आप ये जो डिफरेंट सेगमेंट के एंगल्स है वो बनाना शुरू करेंगे. तो सबसे पहला वाला एंगल यू आर हैविंग 54, तो यहाँ पर आप इसको लेंगे बेस लाइन एंड यू विल बी ड्रॉइंग 54 विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. तो जब आप प्रोटेक्टर से ड्रॉ करोगे 54 समथिंग यहाँ कहीं पर आएगा, और आपको याद होगा 54 डिग्री जो आपने सेगमेंट लिया है दैट इज द गेम फुटबॉल विच द स्टूडेंट्स लाइक. सो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे फुटबॉल बिकॉज द स्टूडेंट हु लाइक फुटबॉल आर 54 डिग्री सेगमेंट पे हैं वो लोग. ठीक है, उसके बाद आप एक एक करके इसमें ड्रॉ करते जाओगे जो कि मैंने कल आपको समझाया था. यू विल बी टेकिंग दिस एज अ बेस लाइन. आप अब इसको बेस लाइन लोगे, अपनी कॉपी को हल्का सा रोटेट करोगे और इस पे नेक्स्ट एंगल बनाओगे. नेक्स्ट एंगल क्या है बेटा, 108 डिग्री का है. तो आप इसको बेस लाइन लेंगे और 108 डिग्री एंगल बनाएंगे जो कि समथिंग यहाँ कहीं पर आएगा बिकॉज इट्स एन ऑब्ट्यूज एंगल. सो 108 जब आप लोगे तो ये हो जाएगा 108 डिग्री. 108 is obtuse angle ना? ऑब्ट्यूज एंगल है ना? Yes मैम. हाँ, सो ऑब्ट्यूज एंगल आएगा ना, इसको आप गौर से देखो. अच्छा सॉरी, इट विल कम लाइक दैट. ठीक है, so it will be 108. I am not taking the protector, you have the protector, you draw it accordingly. So this will be as 108 degree and 108 degree is an obtuse angle. Remember, बाहर की तरफ खुलेगा. ठीक है, so this will be 108 when you will use the protector, and 108 was the segment which was taken by cricket people. Okay, so now this is the segment for the cricketers. ठीक है, those who like this cricket as a game. Then next one was 72 degree. तो अब आप इस वाले लाइन को एज अ बेस मान के चलोगे, इस वाली लाइन को बेस मान के चलोगे एंड यू विल टेक इट 72 डिग्री एंगल समथिंग यहाँ कहीं पे. बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर फॉर इट, एंड यहाँ पर आप बनाएंगे 72 डिग्री का एंगल which is for the next one. Which segment is the next? 72 डिग्री किसका, कौन सा सेगमेंट था बेटा? 54 वन. ना 72 किसका था? फुटबॉल, क्रिकेट, देन टेनिस. ओके, चलो टेनिस ले लिया. ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है 54. फिर से आप 54 ड्रॉ करोगे तो आप इस वाले को बेस लाइन लोगे. आप इस बार इस वाले को बेस लाइन लेंगे और आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा लगभग 54 समथिंग. ठीक है,
सो दिस विल बी नेक्स्ट 54 जो कि आपने लिया हुआ है आई थिंक वॉलीबॉल. Yes, ठीक है, ma'am. whatever you have taken you can mention that. And 54 के बाद बचा है लास्ट, that is 72 डिग्री. so you will mention your 72 डिग्री because जो बचा वाला पार्ट है आप उसको प्रोटेक्टर से मेजर करके देख लोगे. if it is coming 72 it means you are going absolutely fine in the question. ठीक है, तो 72 डिग्री लास्ट वाला गेम कौन सा था हमारे पास? बैडमिंटन. so now the last one is the badminton. now आपको क्या लग रहा होगा बेटा? सारे के सारे सेगमेंट सेम लग रहे होंगे, सिर्फ पार्ट्स में डिवाइडेड है बट एवरी सेगमेंट इज सेम. अब इसके लिए आपको याद होगा मैंने आपको बताया था यू विल यूज ईदर पेंसिल फॉर शेडिंग एवरी पार्ट इन अ डिफरेंट मैनर, या आप पेंसिल जो कलर होते हैं उनका यूज कर सकते हो फॉर डेकोरेटिंग ईच सेगमेंट. नाउ क्रिकेट वाले को आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है, या आप इसको डिफरेंट कलर से कर सकते हैं. देन टेनिस वाले को यू कैन हैव लिटिल डॉट ऑन इट, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट ये वाला वॉलीबॉल वाला है. उसके बाद बैडमिंटन वाला आप चाहो तो इस वाले फॉर्म में बना करके उसको ऐसे बॉक्स वाले फॉर्म में कर सकते हो. तो अगर आप सिर्फ पेंसिल का यूज कर रहे हैं तो आप चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट इस फॉर्म में बना सकते हो. लेकिन अगर आप पेंसिल कलर का यूज कर रहे हो बेटा तो यू कैन हैव डिफरेंट डिफरेंट कलर फॉर ईच सेगमेंट. ठीक है, Okay, ma'am.